Good morning. Good morning, all of you. In the series of endocrinology, today we will study about islets of Langerhans. Islets of Langerhans, as you know, we have discussed in the general classifications of endocrine glands. It is the endocrine part of the pancreas. As we already know, pancreas is a dual gland, means it has both endocrine as well as exocrine part in this. Therefore, some part of the pancreas is exocrine. These acinas which secretes the pancreatic juice and are responsible in digestive system. It is secretion of digestive juice and helps in digestion. And the endocrine part of the pancreas is known as islets of Langerhans. It is the endocrine part, that means it secretes hormones. There are mostly 3 and 4 type of cells which secrete hormones. The main 2 types of the cells are alpha and beta cells. We will see later. Now, what is the pancreas? As we know, the pancreas is a complex organ which consists, as I have told just now, which consists both exocrine and endocrine parts. Clear? We are concerned about endocrine part in islets of Langerhans, that is the islet of Langerhans. The endocrine part is composed of islets of Langerhans that secrete some hormones. The islets जो है, it is composed of few thousand endocrine cells, and these islet cells, मतलब जो endocrine part of cells है, ये total pancreatic mass का सिर्फ 2% है. Clear? मतलब मोस्टली ये एक्सोक्राइन पार्ट है, उसका सिर्फ 2% ही है जो कि एंडोक्राइन पार्ट है. And the primary function of the endocrine region, that is these islets, is to assist digestion by the release of some hormones. We will see which hormones, and that helps in the metabolism of the different biomolecules. Now, the pancreas is located behind the stomach. As you know, you recall this digestive figure, a leaf-like structure is the pancreas. The pancreas, it is located behind the stomach, and it is believed that the pancreas developed as the outpocketing of the epithelial lining of the gastrointestinal tract. Outpocketing मतलब मान लीजिए gastrointestinal tract है, इससे एक बाहर ऐसे outgrowth निकल के ये pancreas बनाते हैं. Now, insulin and glucagon are the 2 important hormones secreted by the cells of the. और भी hormones है, but the main hormones are insulin and glucagon. ठीक है? अल्फा बीटा सेल से इंसुलिन एंड अल्फा सेल से ग्लूकागोन. और दूसरे हार्मोन्स भी हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे आर सिक्रेटिंग. द मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आर insulin and glucagon. This you can see, this is pancreas. ये पूरा pancreas है, leaf like structure होता है. इसमें ये जो बाहर आप एसिनस देख रहे हैं ना, these acinus type of cells, these are exocrine pancreas. ये पूरा exocrine pancreas है, और ये बीच का पार्ट है, that is known as islets of Langerhans. और ये different color के cells देख रहे हैं, there are 4 type of yellow color के हैं, ये beta cells हैं, ज्यादा होते हैं सबसे, जो इंसुलिन है. This one is alpha cells जो कि ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं, एंड गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स 2 है जो थोड़े बहुत कम होते हैं. Now, the proportion of islets of Langerhans. अभी अगर हम लोग islets of Langerhans की बात करें तो वो कितना है पैनक्रियास का, यूजुअली ओनली अबाउट 2% है, अभी बताया था मैंने. और इसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ सेल एक ह्यूमंस में होते हैं 3.2 से 14.8 मिलियन तक होते हैं. नाउ वी विल सी द सेलुलर कंपोजिशन
जो है आइलेट्स का वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट फंक्शनल डिफरेंसेस के साथ शो करता है ना। और ह्यूमन की बात करें तो वहां पे आपको 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड गामा सेल्स और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूसिंग सेल्स मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अल्फा सेल एंड बीटा सेल। बीटा सेल जो है ये इंसुलिन सीक्रेट करता है, अल्फा सेल ग्लूकागोन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन एंड ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, गामा सेल्स और पीपी सेल्स। और जो ये चारों सेल्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है, अभी नेक्स्ट फिगर में मैं दिखाऊंगी, जिनका जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। ऐसा कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है कि यहाँ पे अल्फा मिलेगा यहाँ बीटा, बट दे आर अरेंज्ड रैंडमली। और अगर कंपोजिशन की बात करें इन चारों सेल्स की, तो बीटा सेल्स जो है सबसे ज्यादा होते हैं, इट इज अबाउट 60%। अभी मैंने दिखाया था उस फिगर में येलो वाला, बीटा सेल्स जो है अबाउट 60% ऑफ द टोटल आइलेट्स के जो टोटल सेल्स हैं, एंडोक्राइन पैनक्रियास के जो टोटल सेल्स में 60% बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, और अल्फा सेल्स जो होते हैं 30% होते हैं जो ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं। तो 60 और 30 90 हो गया, तो बाकी बचे 10% में जो है रिमेनिंग 10% इज कवर्ड बाय डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। And we know that each and every cell is supplied with blood and nerve supplies, तो ये भी इनमें भी blood and nerve supply होंगे। और gland is facilitated by the neuromuscular bundle जो कि penetrate करते हैं central core of the beta cells में। और ये जो चारों cells हैं, ये 4 different हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंस मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी का। ये आप हिस्टोलॉजी देखिए, These are the exocrine, ये सब एक्सोक्राइन पार्ट है, एसिनस जिसको हम लोग कहते हैं, ये एंडोक्राइन पार्ट है ना। डेल्टा सेल्स हैं, कम है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं पैनक्रियास में, पैनक्रियाटिक एसिनस या एक को एसिनस बोलेंगे और प्लूरल में एक साथ बोलते हैं तो एसिनी बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में आप बीटा सेल्स देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं 60%, अल्फा सेल्स 30% और बाकी 10 में ये बाकी 10% में डेल्टा और गामा सेल्स होते हैं। वन मोर डायग्राम, ये येलो वन इज द बीटा सेल्स है ना, जो सीक्रेट करते हैं, और ये कितने होते हैं 60%, ये लगभग 60% होते हैं। और ये जो रेड वाल ये पिंक दिख रहे हैं दैट इज अल्फा सेल्स विच सीक्रेट ग्लूकागोन, ये लगभग 30% होते हैं। और ये सब देखिए बाकी 10% में ये दोनों डेल्टा सेल्स जो सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं, और पीपी सेल्स या गामा सेल्स ये सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये 10% में होते हैं, इसलिए इनका नंबर आप देख सकते हैं कम है। ये ग्रीन वाले डेल्टा सेल्स हैं, ब्राउन वाले पीपी सेल्स हैं। Now hormones, as we know there are 4 types of cell, that is they are secreting different types of 4 types of hormones. Insulin secreted by beta cells, glucagon secreted by alpha cells, somatostatin by delta cells, and from PP cells pancreatic polypeptide. अगर हम चारों को अलग अलग देखेंगे तो द मेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज द बीटा सेल्स का नंबर सबसे ज्यादा है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है बीटा सेल्स इज सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स, ये लगभग 50 अमीनो एसिड्स के होते हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसमें अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस है, यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। प्राइमरी फंक्शन जो है इंसुलिन का इज टू, बहुत फंक्शंस हैं बट प्राइमरी जो मेन फंक्शन है ये क्या है, लोअर द ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल। ब्लड में ग्लूकोज की, जो कि मेनली ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल को ये ब्लड में रेगुलेट करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज, मेनली ज्यादातर ग्लूकोज, बट ये अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स के भी लेवल को मेंटेन करते हैं। और इंसुलिन जो है ये एक लार्जर पॉलीपेप्टाइड के रूप में सिंथेसाइज होता है। इंसुलिन जैसा है वैसा नहीं है, उसको वो उसके पहले एक लार्जर पॉलीपेप्टाइड रहता है जिसको हम लोग प्रो इंसुलिन कहते हैं, जो कि फिर उसमें से क्लीवेज होता है या कटिंग हो जाता है, क्लिपिंग हो जाता है और फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो इंसुलिन
जो है वो तीन मैकेनिज्म से काम कर रहा है। पहला क्या है, इट एनहांसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। वो इनहांस करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज को। ये ऑल्सो इनहिबिट करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा हो जाता है तो लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन अ ग्लाइकोजन फॉर्म। तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तोड़ने को रोकता है, ठीक है, बिकॉज ये ब्लड शुगर को रेगुलेट मिनिमाइज करता है। और ये ऑल्सो इनहिबिट करता है, और किसको रोकता है, अमीनो एसिड और फैट्स इनटू ग्लूकोज। जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ग्लूकोज इंटेक्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे भी सिस्टम्स हैं जो अमीनो एसिड और फैट से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज ग्लूकोज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। नाउ बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, अभी मैंने प्रो इंसुलिन की बात की, उसमें हम लोग देखते हैं कि जब बायोसिंथेसिस होता है कहाँ होगा, इंसुलिन है तो बीटा सेल्स में होगा। अब जो इंसुलिन है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जब इंसुलिन बनेगा तो मैसेंजर आरएनए से स्टार्ट होकर मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड एज अ सिंगल चेन। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए जो है ये सिंगल चेन प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब जिससे आगे बनता है, जिस यहाँ से शुरुआत होती है, उसको हम लोग प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं। अभी मैंने प्रो इंसुलिन और इंसुलिन की बात की थी, बट उसके भी पहले प्रीकर्सर जो है, दैट इज जो सबसे पहले जहां पे ट्रांसलेट होके मैसेंजर आरएनए से बनता है, इट इज प्री प्रो इंसुलिन। और उसका जो रिमूवल है, उसके बाद उसमें से रिमूवल हो जाता है पेप्टाइड का, और ड्यूरिंग इंसर्शन ये जब बन जाते हैं मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेट हो जाते हैं, उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जाने के पहले ये चेंज हो जाता है प्रो इंसुलिन में। कौन सा, प्री प्रो इंसुलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रो इंसुलिन के फॉर्म में आता है, ठीक है, अभी भी इंसुलिन नहीं आया है। अब ये जो प्रो इंसुलिन है, इसमें नेक्स्ट डायग्राम यू विल सी, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अमीनो टर्मिनल, बी चेन जिसको बोलते हैं, जिसमें अमाइनो टर्मिनल है, मतलब जिसके एंड में अमाइनो टर्मिनल है, और दूसरा में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल, उसको ए चेन कहते हैं, क्लियर। और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला एक कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है इन द मिडिल, जिसको हम लोग कहते हैं सी पेप्टाइड, कनेक्टिंग पेप्टाइड। अब क्या होता है, ये प्रो इंसुलिन है। अब इस सिक्रीशन के पहले अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गोल्जी बॉडी में जाके सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के रूप में स्टोर होता है। तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, प्रो इंसुलिन के रूप में था, अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोज होता है डिफरेंट एंजाइम्स में, यहाँ पे एक्सपोज होता है डिफरेंट एंडोपेप्टिडेज एंजाइम्स में। वो क्या करते हैं, ये सी पेप्टाइड जो कनेक्टिंग है बीच में पेप्टाइड, उसको काट देते हैं, एक्साइज कर देते हैं, काट देते हैं, और उसके बाद तब जनरेट होता है मैच्योर इंसुलिन, क्लियर। पहले प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रो इंसुलिन के रूप में, और जब गोल्जी बॉडी में सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के रूप में स्टोर होता है तब इंसुलिन के रूप में। यहाँ पे दोनों, एक जो सी पेप्टाइड कटा है वो अलग हो जाएगा और इंसुलिन अलग हो जाएगा। तो इंसुलिन एंड फ्री सी पेप्टाइड्स आर पैकेज्ड इन द गोल्जी इनटू द सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स व्हिच एक्युमुलेट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में जमा रहते हैं। और उसके बाद जब बीटा सेल्स एप्रोप्रिएट होगा, जब इंसुलिन की जरूरत होगी, जब वो स्टिमुलेट होगा, तब यहाँ से इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स। अब यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और डिफ्यूज हो जाता है आइलेट्स के कैपिलरी जो ब्लड सप्लाई है वहां पे। वी नो दैट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। सी पेप्टाइड भी वहां पे जाते हैं क्योंकि ये भी है उसके अंदर, बट इसका कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो दिस इज अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। ये वी कैन अंडरस्टैंड बेटर बाय द डायग्राम। दिस इज द प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब ये देखिए, ये ए चेन है ना, अमाइनो ग्रुप वाला, ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला बी चेन है, और ये जो पर्पल कलर है बीच में, और ये ब्लैक कलर है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर देखिए, ये प्री प्रो इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन है, और ये इंसुलिन है। अब ये प्री इंसुलिन में बाकी सब स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से एक चेन बोला ना मैं, कट जाएगा पॉलीपेप्टाइड का, तब ये चल हो जाएगा प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन में ये फिर जो पर्पल कलर का है ये सी पेप्टाइड है, ठीक है, ये हट जाएगा तब ये इंसुलिन बन जाएगा। तो प्री इंसुलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब एंटर होता है तो प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। जब मैसेंजर आने से ट्रांसलेट होता है तो सबसे पहला
प्री प्रो इंसुलिन बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होने का पहले यहाँ से क्लीवेज हो जाता है, तब ये प्रो इंसुलिन होता है, फिर इसमें से सी पेप्टाइड ये पर्पल वाला निकल जाता है, तब ये इंसुलिन होता है। क्लियर? यहाँ आप देखिए बीटा सेल्स, आइलेट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या है, प्री प्रो इंसुलिन। गोल्जी अपैरेटस में आता है वो प्रो इंसुलिन, सिक्रीट होता है जब, तब इंसुलिन और सी पेप्टाइड अलग अलग होता है। ये है आपका प्रो इंसुलिन, ये ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये, और ये जो है सी पेप्टाइड है। तो जब ये अलग हो जाता है, दिस वन इज इंसुलिन एंड दिस वन इज फ्री सी पेप्टाइड। दिस इज द डिटेल्ड अमीनो एसिड सीक्वेंसेस कि किस कैसे सीक्वेंसली, क्योंकि ये शॉर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये अमीनो एसिड सीक्वेंस दिखा रहा है एक आपका इंसुलिन का पूरा, और कहाँ से ये लिंक्ड भी है, देखिए ये 5th और 11th लिंक्ड है, ये 16 और 16 7th में लिंक्ड है, यहाँ पे ये 21 और 19 लिंक है। ये सारा ये डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन है विद द नेम ऑफ ऑल द नेम ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। अब आइए ग्लूकागोन, द सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन इज द ग्लूकागोन। ये किससे सिक्रीट होता है, अल्फा सेल से। अल्फा सेल से पैनक्रियास के, पैनक्रियास नहीं कहा कि हम लोग इसको एंडोक्राइन पैनक्रियास बोल सकते हैं या आइलेट्स बोल सकते हैं, विच वर्क्स बाय द अपोजिट मैकेनिज्म। अब इसका जो फंक्शन है वो पूरा अपोजिट है इंसुलिन के, ठीक है। तो ब्लड शुगर घटाता था इंसुलिन ब्लड में, ये बढ़ाएगा। तो ग्लूकागोन ये 29 अमीनो एसिड्स का भी है, ये भी लिंक्ड रहता है, लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन है। ग्लूकागोन इज अ हाइपर extremely potent hyperglycemic agent that cause release of glucose into the blood। उल्टा हुआ है इंसुलिन से, इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज हटाता था, ये ग्लूकोज में बढ़ाता है। तो टारगेट ऑर्गन जो क्या है ग्लूकागोन का, वो लीवर है, क्योंकि ग्लाइकोजन, अभी मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में। तो ये ग्लाइकोजन को में से ग्लूकोज को तोड़ता है, एज इट इन जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज टूट जाएगा, देन इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। द चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। आई थिंक यू हैव टू स्टडी इन योर बायोकेमिस्ट्री चैप्टर, तो वी विल डील अलग से, हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस डील करेंगे, बट यू शुड नो कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, जो कि लीवर में होता है। तो ये उल्टा करता है, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तोड़ेगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ सके। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड से भी या दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तो ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन से ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में चेंज किया, लेकिन अगर मान लीजिए ब्लड में कमी हो जाती है ग्लूकोज की, तब नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से भी, जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, उससे भी ग्लूकोज कन्वर्शन होता है, तो ये उसको भी एक्टिवेट करता है। तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, और ये रिलीज ऑफ ग्लूकागोन बाय अल्फा सेल्स इज स्टिमुलेटेड बाय फॉलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि स्टिमुलेट करता है उसको राइज करने के लिए। दिस इज द डिटेल्ड सीक्वेंसिंग ऑफ द अमीनो एसिड्स इन ग्लूकागोन। इट इज अ सिंगल सेंड polypeptide chain. Now this diagram explains the regulation of these two hormones, the main two hormones of islets। ये दोनों मेन हार्मोन है और एक दूसरे के अगेंस्ट या अपोजिट काम करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज द लीवर, यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का इंटरकन्वर्शन हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये अगर हाई ब्लड शुगर हुआ ब्लड में, ठीक है, अब ब्लड में हाई शुगर हो रहा है तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करने के लिए प्रोमोट करेगा ताकि इंसुलिन ब्लड में से शुगर को हटा सके। तो दिस विल प्रोमोट इंसुलिन रिलीज। इंसुलिन रिलीज कहाँ से होगा, पैनक्रियास के बीटा सेल से। अब एक बार इंसुलिन रिलीज हुआ तो ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है। अब दूसरा अगर लो हुआ है ब्लड सेवर शुगर, ये उल्टा, इसको पैनक्रियास को किसको एक्टिवेट करेगा, अल्फा सेल को, किसके लिए, ग्लूकागोन सिक्रीट करने के लिए। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को तोड़ देता है ना।
और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या होगा, रेज होगा ब्लड शुगर, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में करता है तो ग्लूकोज कम होगा तो ब्लड शुगर लोअर होता है। तो ये दिस फिगर्स एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, क्योंकि ये घटाता है ये बढ़ाता है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। नाउ थर्ड वन इज सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन जो है कि या दूसरे जगह से भी रिलीज होता है ना, मेनी टिश्यूज इन द बॉडी, प्रिंसिपली बाय नर्वस टिश्यू आल्सो, और डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यूज से भी, ठीक है। बट इन addition what happens, somatostatin is also produced by pancreas by the delta cell. डेल्टा सेल अभी बताया जो 10% में डेल्टा और गामा सेल्स हैं, तो ये जो डेल्टा सेल्स है ये और जगह से भी सिक्रीट होता है, बट डेल्टा सेल्स से भी, पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन पैनक्रियाटिक के डेल्टा सेल्स से भी सिक्रीट होता है, एंड विच इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ अदर पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, जो दूसरे अदर हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन को, उसके सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। ये अभी मैंने बताया कि इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑल्सो, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, और गैस्ट्रिन और जो दो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन है गैस्ट्रिन एंड सिक्रीटेड, उसके भी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो मेनली इट inhibits the secretion of the other hormone. Now the last one is the pancreatic polypeptide, which is secreted by the PP cells or gamma cells or F cells. ठीक है, PP cells also known as gamma cells और F cells in the endocrine पे, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है पैनक्रियाटिक सिक्रीटरी एक्टिविटीज को, ठीक है, एंड ऑल्सो इम्पैक्ट लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज, जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो रहा है लीवर में, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशन को, इसको ये रेगुलेट करता है। और ये सिर्फ एंडोक्राइन को नहीं रेगुलेट करता, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आल्सो जो रेगुलेट करता है बोथ एंडोक्राइन को तो करता ही, एक्सोक्राइन टिश्यूज को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, एंड इट आल्सो अफेक्ट हिपैटिक ग्लाइकोजन लेवल, जो लीवर में ग्लाइकोजन लेवल है उसको भी अफेक्ट करता है, और दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशंस को भी ये इफेक्ट करता है। तो दीज आर द फोर main two hormones, insulin and glucagon, and other one somatostatin and pancreatic polypeptide. These are the four hormones secreted by islets. Function actually already we have dealt in the last slides, but again the endocrine function जो है पार्ट ऑफ द ग्लैंड रिलीज डिफरेंट हार्मोन्स। अभी हम लोग देखा 4 तरह के हार्मोन करते हैं जो कि अलग अलग तरह से ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल को रेगुलेट करते हैं। अब इंसुलिन की बात करें तो ये अल्फा सेल नहीं होगा, ये बीटा सेल होगा। It is a typing mistake. Insulin is secreted by the beta cells of the islet of the Langerhans that is responsible for decreasing the blood glucose. ये तो अभी हम लोगों ने बार-बार देखा। और ग्लूकागोन है उसके अपोजिट काम करता है, which increase the blood glucose levels in the ब्लड। और डेल्टा सेल्स क्या है, वो इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि इनहिबिट करता है दूसरे अदर जो हार्मोन है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को, उनको इनहिबिट करता है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि इंसुलिन क्या फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटेट्स, अगर ये ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर रहा है तो naturally it will facilitate the entry of glucose into the muscles, adipose and other tissues. ठीक है, it also stimulate the liver to store glucose in the form of glycogen, मतलब ये glycogenesis को स्टिमुलेट करता है। अब वेल नोन इफेक्ट, अब इसको ग्लूकोज अगर ब्लड से घटाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नेचुरली घटेगी। और इंसुलिन ऑल्सो प्रोमोट करता है, सिर्फ मैंने पहले भी कहा था इट नॉट ओनली मेनली ये कार्बोहाइड्रेट को करता है पर दूसरे को भी ये इफेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स इन लिवर, क्लियर, इट इज एंड ऑल्सो इनहिबिट, यहाँ प्रोमोट करता है फैटी एसिड सिंथेसिस को, और इनहिबिट करता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में फैट जमा होते हैं, उसके ब्रेकडाउन को ये रोकता है, और ये स्टिमुलेट करता है अपटेक ऑफ एमिनो एसिड्स को भी। तो इट अपार्ट फ्रॉम द ग्लूकोज
कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए फैटी एसिड, अमाइनो एसिड सबको इफेक्ट कर रहा है। तो इंसुलिन ऑल्सो, ये ऑल्सो इंक्रीज करता परमियाबिलिटी, जो परमियाबिलिटी है कि मेम्ब्रेन से अंदर आने को, ये इंक्रीज करता है किसको, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन के सेल्स में परमियाबिलिटी को भी ये इंक्रीज करता है। क्लियर? तो दिस इज द समरी ऑफ द फंक्शन ऑफ द आइलेट्स हार्मोन। ना मैं अब किसी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए या कुछ हो जाए, तो वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन बोथ प्रोड्यूसेस डिजीजेस। तो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट डायबिटीज का नाम आपने सुना है, जिसको सुना ही होगा, जिसको शुगर हम लोग कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस। सिर्फ डायबिटीज बोलने से दो तरह की डायबिटीज होती है, बट इसमें जो जिसकी वजह से जो ग्लूकोज बढ़ने की वजह से होता है, that disease is known as diabetes mellitus। तो ये जो डायबिटीज मेलिटस है, ये कंडीशन है, एक कंडीशन हुआ ना, ये किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन के या तो हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन मतलब कम सिक्रीट हो इंसुलिन, एंड दूसरा भी एक और रीजन है, हाइपो एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। हाइपोसिक्रीशन मींस कि सिक्रीशन ही कम हुआ, और हाइपो एक्टिविटी मतलब सिक्रीशन तो इंसुलिन कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी रुकी हुई है, उसकी जो काम है, फंक्शन है, वो नहीं कर पा रहा है। तो दीज आर टू डिफरेंट कंडीशंस। हम लोग फर्दर इसको डिमार्केट कर सकते हैं। तो डायबिटीज भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो ये जो कंडीशंस हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज है, वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होते हैं, कि इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो पा रहा है बॉडी में, कम हो रहा है। तो उसकी वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है, उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है कि इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है, बट उसकी एक्टिविटी बहुत कम है, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, विच इज रिजल्ट फ्रॉम द हाइपो एक्टिविटी ऑफ द रिलीज्ड इंसुलिन। इंसुलिन आ रहा है, बट उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। अब तो दोनों ही वजह से बॉडी में इंसुलिन लैक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो लैक ऑफ द इंसुलिन इन द बॉडी क्या होगा, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का यही काम है, बढ़ा ब्लड में से ग्लूकोज हटाना, विच कॉज एक्सेस लॉस ऑफ ग्लूकोज, जिससे यूरिन से भी ग्लूकोज का लॉस होने लगता है। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है, ये कॉमन है चिल्ड्रन में, और कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द इमीडिएट ऑनसेट। अगर किसी को डायबिटीज टाइप 1 हो गया, तो उसके जो भी सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, वो तुरंत शो करने लगेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज जो है, वो एडल्ट में होता है, ज्यादातर 40 के बाद या 40-45 के बाद एज में होने लगता है, और इसके जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे आपको दिखेंगे। ठीक है, और एज यू नो बाय द रिकॉर्ड्स एंड डेटा यू हैव, आप लोग देखते हैं कि डायबिटीज कितना कॉमन डिजीज हो गया है आजकल। तो इट कैन बी, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, बट इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। बहुत अगर अनकंट्रोल्ड होता है तो किडनी फेलियर होता है, सीरियस कंडीशंस हो जाते हैं, क्रोनिक होने से डेथ भी हो सकती है, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। द पीपल आर लिविंग विथ डायबिटीज, और सब आराम से, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर बहुत ज्यादा डायबिटीज अगर बढ़ जाती है, तो ये बिकॉज क्या हो रहा है, इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं, उस इंजेक्शंस लेके उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। So this is about the islets of Langerhans. Thank you very much.